Hello and welcome, students. I, Kumar, welcome you again to this amazing platform where we simplify your preparations. So, we have started off with a very important series where we take important 50 questions that is very likely to be part of your actual paper. So, without taking much of your time, let's see the question. So, this is days 36, question number 36. Now, this is a very important question. Why I'm saying it's a very important question? Because considering CAT 2023, APGP was a very important topic. Means in every section, in every slot, there was around 2 to 3 questions, and even SICI is a very important chapter. So it's a mixture of both. So again, that's why we say it's a very important question. So let's see how to do this question. So the question says that Krishna borrows rupees 45k from a bank at 10% compound interest. He repays it in 3 annual installments that are in arithmetic progression. He ends up paying 54k totally. How much did he pay in year 1? So basically, whatever questions of installment you might have done earlier, okay, in all those questions, the installments are generally equal. But in this question, the installments are not equal. Rather, the installments are in AP. Okay. Now see. Now what happens? Suppose I have taken a loan. So this is the principal amount. Suppose now of this principal amount, if I am paying certain amount as installment, ठीक है, अगर कुछ पैसा मैंने मान लो प्रिंसिपल लिया था, मैंने कुछ पैसा पे कर दिया इंस्टॉलमेंट का, सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ठीक है, दिस प्रिंसिपल विल बी स्लाइटली, इट विल बी रिड्यूस, मतलब जो एक्चुअल प्रिंसिपल था उससे थोड़ा कम प्रिंसिपल रहेगा अब आपके पास. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर 100x प्रिंसिपल था, ठीक है, तो थोड़ा कम हो जाएगा, सपोज ये 80x हो गया, तो ये वाला इंस्टॉलमेंट ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू ये इंस्टॉलमेंट. मतलब इफ यू वांट टू स्क्वायर, देखो अगर ये तीनों इंस्टॉलमेंट्स इक्वल होते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन अगर इफ यू वांट टू स्क्वायर ऑफ योर लोन्स, ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कांस्टेंट, तो जो फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है दैट विल बी मोर, तो उसका इंस्टॉलमेंट ज्यादा होगा, ठीक है. फिर जो सेकंड, अगर मैंने प्रिंसिपल में से कुछ इंस्टॉलमेंट दे दिया, सो वॉट एवर विल बी लेफ्ट, ठीक है, तो वो दैट विल बी अ रिड्यूस प्रिंसिपल, राइट. तो अगर मैं उसका 10% निकालूं, तो अगर मैं कम इंस्टॉलमेंट भी दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा. और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो और भी कम होगा तो चलेगा. यानी इंस्टॉलमेंट विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है. अगर आप एपी में देखो, एपी में है तो आइदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. ना अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर मेरे 3 इंस्टॉलमेंट में मान लो पूरे पैसे जा रहे हैं, तो मेरा जो सबसे बड़ा इंस्टॉलमेंट होगा वो ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट होना चाहिए. तो लेट्स सी हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. So it says that Krishna borrows rupees 45k from a bank at 10% compound interest. He repays it in 3 annual installments that are in arithmetic progression. So let the 3 installment, first installment let it be A plus D. Second installment is let A, and third installment is A minus D. So these are the 3 installment. First installment is A plus D, then the second one is A, and then the third one is A minus D. And ये तीनों इंस्टॉलमेंट मिलकर आप कितना का लोन स्क्वायर ऑफ क्लियर कर रहे हो, ठीक है. देखो ही एंड्स अप पेइंग 54k टोटली, मींस इफ आई ऐड ऑल द 3 इंस्टॉलमेंट्स, जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 54k. इट मींस दैट देखो डी एंड डी विल कैंसिल. देखो डी, ए और डी लेने का यही फायदा है. तो इफ डी एंड डी विल बी कैंसिल, सो अल्टीमेटली आई विल हैव द वैल्यू ऑफ ए एज 18k. मतलब मेरा जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है, अगर वो क्या है, वो है 18k. So first installment will be slightly more than 18k and the third installment will be slightly lesser than 18k. देखो in this question clearly they have stated that the installments are not same, ठीक है. ऐसा नहीं है कि तीनों इंस्टॉलमेंट सेम है. तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो लोन है वो स्क्वायर ऑफ हो, तो मेरे को जो फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट है वो ज्यादा रखना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट उससे कम रखूंगा, और थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट उससे कम होगा, ठीक है. तो अगर ये 18 इंस्टॉल ये है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी व्हाट, इट विल बी 18 प्लस डी. सेकेंड इंस्टॉलमेंट विल बी व्हाट, इट विल बी 18 माइनस डी. सो व्हाट विल बी योर इंस्टॉलमेंट. तो क्लियरली देखो अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 18k का है, तो डेफिनेटली जो आंसर होगा, ठीक है, वो ये और ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा दैट इज 18k प्लस डी. तो डेफिनेटली आंसर या तो ये है या तो ये है. देखो आप चाहो तो आप आराम से 10% वाला कंसेप्ट यूज करके, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करके कर सकते हो.
लेकिन अगर मान लो मैंने दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया तो मुझे दो ऑप्शंस के साथ ही वर्क करना है। तो सपोज अगर मान लो मैंने देख लिया कि चलो मैं मानता हूं कि ये मेरा इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, मान लेता हूं जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये आंसर है, तो आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद दिस। अगर ये वर्क किया वेल एंड गुड, अगर नहीं वर्क किया तो क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन आपको टिक कर लेना। तो अगर आपका मान लो अमाउंट 45K है, ठीक है, एंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड ये, सो आफ्टर एन ईयर द अमाउंट विल बी व्हाट, इट विल बी 45 इंटू 1.1। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 45 इंटू 1.1, so it will be 49.5. now out of 49.5 how much I am paying 19.5, considering कि ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने 19.5 पे कर दिया तो 19.5 इसमें से माइनस कर लो 19.5, so you are left with 49.5 minus 19.5, so it will be what, it will be 30K. means after paying the first installment of 19.5 which I have just assumed कि ये आंसर हो सकता है, ठीक है, I'm getting 30K. Next, again, yet now this will be your principal. So amount will be what? Amount will be 3.3K. Sorry, 30 into 1 will be what? It will be 30 into 1.1 is what? It is 33. तो 33K अब मेरा आउटस्टैंडिंग है। अब 33K में अगर मान लो मैंने 18K पे कर दिया, सो हाउ मच इज लेफ्ट, ठीक है, आई विल बी लेफ्ट विथ 18 यानी 15K. नाउ दिस विल बी द आउटस्टैंडिंग लोन। तो अगर ये आउटस्टैंडिंग लोन है इसका 1.1 निकाल लो। तो अगर मैं इसका 1.1 निकालूं तो ये क्या हो रहा है, 15 इंटू 1.1, सो इट इज सिंपली 16.5। और अगर आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट 16.5K है, ठीक है, सो ऑब्वियसली होगा, देखो अगर आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट 18K है और यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी इज 1500, ठीक है, 1500 का ये है। तो 18K में से अगर मैं 1500 निकाल लूं या 1.5 निकाल लूं, so it will be what, it will be 16.5. so if I am considering B, okay, each and every option is satisfied, so that's why answer is B. वैसे तो देखो there are many way of solving this question, ठीक है, you can do by any method, आप आराम से formulas यूज करो and you can solve, but देखो जब आपका जो एक्चुअल पेपर होता है ना, वहां ये नहीं देखा जाता कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया। I agree, mathematically correct होना चाहिए, whatever you are doing now mathematically it has to be correct, but yes we have to attempt the question as fast as possible. Okay, so instead of going by the normal method, okay, it will be a better approach to we are doing this question by this way. So answer to this question will be what, it will be 19,500. the first, so the three installments are 19,500, okay, second one is 18,000 and the third last one is 16,500. तो ये तीनों इंस्टॉलमेंट मिलकर आपका जो लोन है 54K का, जो टोटली इट विल बी स्क्वायर्ड ऑफ। ओके, so this is the answer to this question. So hope you might have enjoyed the discussion. If you love the content, make sure you are liking the video, and if you have any suggestions for us, please reach to us through comment box. At the same time, if you want to crack CAT 2024 GD and PI and you want to get into your top IIMs and top B schools in just one attempt, so for the personalized approach, link is there in the description. So thank you all and have a nice day ahead, everyone.